देखा जाए स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. नोट। तो वेलकम टू आफ्टर एग्जामिनेशन क्लास, राइट? इट मे हैपन फर्स्ट टाइम આપણી લાઈફમાં કે બે આપણા વચ્ચે મતલબ સેમિસ્ટર વચ્ચે એક પ્રીવિયસ સેમિસ્ટરની એક્ઝામ આવી ગઈ, રાઈટ? ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ એન્ડ યુ આર વિટનેસિંગ. અને તમે મોટા થશો ને એટલે તમારા બાળકોને અથવા તો તમે ટીચર બનશો તો તમારા સ્ટુડન્ટ્સને કહેશો કે અમે તો આવી રીતે એક્ઝામ આપી, બોલો એમ. મોટી બડાઈઓ મારવા થાય ને એના માટે, રાઈટ? So that's why Corona has given you one thing you can say and you can tell to your children and you can tell to your students કે હવે આવી રીતે આપતા હતા અને ઓનલાઈન ભણતા હતા ને તો ખબર નથી પડતી ને આટલી બધી તકલીફ હતી ને તે છતાંય અમે આટલા માર્ક્સ લાયા, બોલો એમ. એટલે છોકરાઓને પરાણે કહેવું પડે કે હા હા સાહેબ, વેરી ગુડ એમ, રાઈટ? તો એવી શુભેચ્છાઓ કે તમને આમ બધા વાહ વાહ કરે, રાઈટ? તો હવે લાસ્ટ ટાઈમ વોટ વી હેવ લર્ન, we have learned about the banking companies final account, isn't it? Banking companies final account, and we have learned an example also we have solved. Assignment, most of you have submitted your assignments, so it's good thing, right? So we are learning example uh, which is given in your book, which is considered as a New Delhi Bank, right? New Delhi Bank, page number, our page number is 7. Let's read this. The following figures are extracted from the books of New Delhi Bank Limited as on 31st March 2006. So these are the extracted things. These are not particular things, right? It is extracted. Extracted, it is not complete or full, right? Extracted means something which is a summary or main points that we have taken, and that's why the word extracted are being used, right? So interest and discount received, interest paid on deposit, etc., is given. You can see, and one change I have done. One change I have done that instead of reserve under 70, section 70, write it down income tax provision of current year 7 lakh. So 7 lakh is given, but we are writing income tax provision. Why? Because there was a issue whether this is reserve or whether provision, right? And that's why we have changed. तो आपके जो पैम्पलेट में है वहां रिजर्व अंडर सेक्शन 17 लिखा है, वहां आप राइट 7 लाख रुपीज, राइट? तो ये आप कर देना, राइट? कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज, रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सैलरीज, एक्सेट्रा आर गिवन, राइट? यहाँ तक तो पता है। और फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो फर्दर इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो देख देख के लगता है कि ऑल थिंग्स आर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो, राइट? एक्सेप्ट दिस सब्सक्राइब्ड एंड इश्यूड कैपिटल। तो हम पढ़ते हैं द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। वन, ए कस्टमर टू whom a sum of 5 lakh has been advanced, मतलब एक कस्टमर है जिसको 5 लाख हमने लोन दी है या कुछ भी दिया है, एडवांस हैज बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट, मतलब इसके पास पैसे ही नहीं है भैया, वापिस करने के पैसे उसके पास नहीं है, ओके? एंड इट इज एक्सपेक्टेड ओनली 40% कैन बी रिकवर्ड। अरे वाह, मतलब इफ 100 रुपीज इज गिवन, ओनली 40%, मतलब 40 रुपीज, मतलब 16 गॉन, मतलब 60% इज नथिंग बट एट डेट्स, राइट? कैन रिकवर फ्रॉम हिज एस्टेट। एस्टेट मतलब उसकी असेट्स होती है, राइट? इंटरेस्ट
due at 15% on his debt has not been provided in these books, right? इंटरेस्ट का 15% का प्रोविजन किया नहीं है। अभी एक मान लो कि कोई आदमी आपको कैपिटल नहीं दे रहा है, कैपिटल नहीं दे रहा है, तो उसकी इंटरेस्ट की बात करेंगे हम, राइट? उसकी इंटरेस्ट की बात करेंगे कि मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, गया, राइट? तो 15% इंटरेस्ट ड्यू है, हैज बीन नॉट प्रोवाइडेड, तो हम प्रोवाइड भी नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी गया है, लेने की हमारी क्षमता भी नहीं है। तो ये जो ए पॉइंट है वो क्या पॉइंट है? वो है हमारा, इस ये क्या लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, किसी कोई बोलेगा ये कहाँ लिखेंगे हम? वेर वी विल राइट? तो 5 लाख का जो कस्टमर है एडवांस, तो एडवांस अमाउंट यहाँ नहीं दी गई है, राइट? हमने पर्टिकुलर में नहीं दी गई है, लेकिन एडवांस तो होगा, ये एक्सट्रैक्ट है, राइट? तो एक्सट्रैक्ट में मतलब ये नहीं दी गई है, लेकिन पूरा जो फाइनल अकाउंट होगा इसमें होगा। तो इसमें हमारा जो एडवांस अमाउंट हम देते हैं, जैसे लोन देते हैं, कैश क्रेडिट देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट देते हैं, वैसा ही उसमें 5 लाख का है, उसकी बात कर रही है। तो ये 5 लाख का 60% हैज गॉन, 60% गॉन हो गया, मतलब गया। हम कहाँ लिखेंगे, कोई बताएगा? हम कहाँ लिखेंगे? इट विल कंसिडर एज प्रोविजन, प्रोविजन। और प्रोविजन कहाँ लिखते हैं, हमको पता है सबको? प्रोविजन कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोविजन कहाँ लिखते हैं हम? कोई बोलेगा? तो प्रोविजन लिखेंगे जो 13, 14, 15, 16 शेड्यूल के बाद जो होता है, राइट? 16 शेड्यूल के बाद क्या होता है? प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज जो होता है वहां लिखते हैं। तो इसकी प्रोविजन वहां करनी है, हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये सेपरेट है, हम यहाँ टिक करते हैं। आई होप के आप समझ पा रहे हो। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑफ अदर डेट इज नेसेसरी 1 लाख, तो ये भी डाउटफुल डेट्स है, हम कैलकुलेट करेंगे जब भी है, वो भी क्या है? प्रोविजन है, राइट? प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी में ये 1 लाख हम लिख देंगे। नेक्स्ट है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड as on 31st March 2016, sorry 6, and rebate on bill discounted as on 31st March 2007 is 15,000। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या है? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड वो जो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, राइट? सॉरी, क्या क्या रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या है? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या है, कोई बताएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस, और कैलकुलेट हम कर देते हैं, लेकिन दैट फॉल्स ऑफ अदर पीरियड, राइट? तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों है, राइट? ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों है। तो ये कहां से प्लस माइनस करेंगे? ये तो पता है प्लस माइनस करना है, तो ये करेंगे इंटरेस्ट अर्न से। कहा? इंटरेस्ट अर्न से। तो यहां नंबर सी लिख दो, यहां पहला है ना, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, वहां 40,60,000 में सी नंबर लिख दो, क्योंकि ये डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड दिया गया है। इसमें से लास्ट ईयर का जो एडवांस है, ओपनिंग है, हम प्लस कर देंगे, मैं समझाऊंगा क्यों, और क्लोजिंग है वो माइनस कर देंगे। क्यों प्लस करना है, क्यों माइनस करना है, मैं समझाने वाला हूँ। लेकिन ये इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड है, दैट इज अफेक्टेड, सो वी विल राइट सी पॉइंट देयर, राइट? नेक्स्ट, प्रोवाइड 7 लाख फॉर इनकम टैक्स, राइट? तो सॉरी, ये निकाल दो, सॉरी, ये है ना, प्रोवाइड ऑलरेडी यहाँ कर दिया है, राइट? तो यहाँ कर दिया, तो ये रहने दो, और ये ही लिखा है प्रोवाइड 7 लाख फॉर इनकम टैक्स, तो यही है, मान लो कि ये इनकम टैक्स है, राइट? तो 7 लाख हम क्या करेंगे? प्रोविजन में करेंगे। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कहाँ आएगा? प्रोविजन में आएगा, राइट? लास्ट, डायरेक्टर डिजायर टू डिक्लेयर 10% डिविडेंड, तो अगर 10% डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो कहाँ लिखेंगे हम? कहाँ लिखेंगे 10% डिविडेंड डिक्लेयर? तो दिस इज नथिंग बट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कहाँ लगेगा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे? शेड्यूल 13, 14 का एडिशन करेंगे, इसमें से शेड्यूल 15, 16 एंड प्रोविजन एंड कंटिजेंसी माइनस करेंगे, और बाद में जो बचेगा उसके बाद एप्रोप्रिएशन होगा। एप्रोप्रिएशन में स्टैट्यूटरी रिजर्व हम कितना करेंगे?
25%, राइट। तो जो भी प्रॉफिट होगा तो 25% करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं करेंगे, तो वो करेंगे। और ये डिविडेंड डिक्लेरेशन है, वो भी क्या पार्ट है, इट इज ए पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो ये एप्रोप्रिएशन में आएगा, ये एप्रोप्रिएशन में आएगा, तो हम टिक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ और ऊपर टिक करना नहीं है। तो हमको क्या करना है, लास्ट लाइन में हमको बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकॉर्डेंस विद द लॉ। मतलब लॉ मतलब हमारा घर का नहीं बनाना है, और घर का बनाते भी नहीं हम, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो फॉर्मेट दिया है वो फॉर्मेट से ही हम कैलकुलेट करते हैं। एंड मेक नेसेसरी अजम्पशन, हमको अजम्पशंस करनी है, तो हम अजम्पशंस कर देंगे, चलो ना, क्या है इसमें। मतलब आपको अपने घर से अजम्पशन नहीं लानी है, मतलब ये ऐसा मत करना कि मैं एज्यूम करता हूँ कि ऑडिट फी है ना, मतलब 8,000 है, लेकिन 2000 और 1956 की है, मैं इतना एजम्पशन कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, राइट। जो है वो लिखना है, राइट। तो हमको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसका जो शेड्यूल्स है वो बनाना है, राइट। एंड नेसेसरी एजम्पशंस जो है, तो एजम्पशंस में तो हम मास्टर है, क्योंकि सब आप जो कर रहे हैं वो एजम्पशन से ही एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं। तो एजम्पशन के आप सब मास्टर हैं, तो वही एजम्पशन के साथ आंसर नंबर जो भी है वो लिखेंगे। और कौन सी बैंक है, न्यू दिल्ली बैंक, न्यू दिल्ली बैंक, राइट। राइट, तो न्यू दिल्ली बैंक लिखेंगे। हमको क्या बनाना है, ये बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो राइट इट डाउन, स्टेटमेंट showing प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ न्यू दिल्ली, आप पूरा लिखना, न्यू दिल्ली बैंक, मेरे जैसे वेट मत उतारना। एज ऑन 31st, 31st है, कौन सी है, हाँ 31st मार्च 2016। और हम कैसा लिखते हैं, बैंक नेम ऐसा लिखते हैं ना, तो हम ऐसा भी लिखेंगे, बैंक नेम न्यू दिल्ली बैंक, पूरा लिखना, राइट। डेट ऑफ प्रिपरेशन 31st मार्च 2016। और हम क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, बना दो, बिल्कुल विदाउट गबरिफाइड बना दो, राइट। तो ये ऐसा ऐसा किस करते हैं ना, पर्टिकुलर, यहाँ क्या लिखते हैं, शेड्यूल नंबर, पूरा स्पेलिंग अच्छी तरह से लिखना है। और ये अमाउंट, क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देनी है प्लीज, राइट। एग्जाम किसको देनी है, आपको देनी है, तो अच्छा किसको लिखना है, आपको लिखना है, राइट। ओके सर, नो प्रॉब्लम, हम अच्छी तरह से लिखेंगे। तो पहला इनकम जो आएगा वो इनकम, राइट। तो पहला शेड्यूल कौन सा है, इंटरेस्ट अर्न। शेड्यूल नंबर 1 नहीं लिखना है, क्योंकि मतलब किसी को ऐसा मतलब चढ़ता है कि सर यहाँ तो है ही नहीं, शेड्यूल 1 से क्यों नहीं स्टार्ट करें। तो शेड्यूल 13 इज स्पेशली फॉर इंटरेस्ट अर्न एंड आईओपी, वेरी गुड, अदर इनकम, याद आ गया ना, आईओपी। ओके, उसका टोटल करेंगे हम। पहले शेड्यूल मैंने इसलिए ना बना के नहीं रखा है, क्योंकि मैं आपके साथ साथ कैलकुलेशन करूंगा। और ये क्या है, एक्सपेंसिस, वेरी गुड, एक्सपेंसिस, आईओपी, आईओपी। तो इंटरेस्ट एक्सपांडेड, इंटरेस्ट गिवन मत लिखना, 15, राइट। ये अदर एक्सपेंस लिखूं, नहीं नहीं सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस नंबर 16। अभी ये है प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज, डैश करना है लेकिन लिखना है, राइट, डैश करना है पर लिखना है। तो ये भी टोटल ये हो गया, राइट। और ये क्या कहेंगे, ये टोटल ए करेंगे, ये टोटल ए, ये टोटल बी लिखेंगे, राइट।
अभी सर पता चल गया, या क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर होता है वैसे A-B यहां लिखेंगे। और एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन में जो भी आएगा, तीन चार पर्टिकुलर, चार लाइन लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखना है, इतना मतलब सारा एप्रोप्रिएशन नहीं करना है। मतलब बैंक तो एक तो कम कमाती है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा करती है, ऐसा नहीं होता है, राइट? हाँ, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ लिखो शेड्यूल्स, शेड्यूल्स। क्या करेंगे हम शेड्यूल्स बनाने के लिए? सर एकदम इजी है, क्या करना है, हमारा एग्जामिनेशन बुक हो ना, पूरा लिख देना है, जहां तक जाए, जहां तक मेरी नजर पड़े वहां तक ये लाइन ड्रॉ कर देना है, राइट? और बाद में क्या करना है सर, यहाँ शेड्यूल लिखते जाओ, लिखते जाओ। शेड्यूल नंबर 13 कौन सा है? इंटरेस्ट अर्न। मेरे साथ लिख रहे हो ना? सब लिख रहे हो ना मेरे साथ? कट ऑफ हो गए हो यस एकदम? यस सर। सर, यस यस सर। सर। वेरी गुड, वेरी, यस सर, इतना सारा यस सर, वेरी गुड। मतलब ऐसे बोलते रहना, मुझे पता चले कि आप सुन रहे हो। शेड्यूल नंबर, देखो शेड्यूल नंबर इंटरेस्ट अर्न तो पांच छह आइटम होती है, तो चार पांच रखेंगे क्योंकि फुल तो। शेड्यूल नंबर कौन सा है? 14, अदर इनकम। वेरी गुड, अदर इनकम, अदर इनकम ज्यादा होती है तो थोड़ा ज्यादा रखना, तो ऐसा ऐसा कर सकते हैं हम, राइट? शेड्यूल नंबर 15। और एग्जाम में तो चिंता नहीं ना, सप्लीमेंट्री के पैसे भर दिए, राइट? इंटरेस्ट एक्सपांडेड, शेड्यूल नंबर 15, राइट? हाँ, इंटरेस्ट एक्सपांडेड में भी तीन चार बहुत हो गए। शेड्यूल नंबर 16, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंस मत लिख देना मेरे भाइयों बहनों, वरना मोदी जी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि बैंकिंग में इतना सारा रिस्ट्रिक्शन ला रहे हो और अदर 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 कर रहे हो, राइट? तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में थोड़ा ज्यादा रखना, क्योंकि बहुत सारे होता है ना, ऑडिट होता है और सैलरी होती है, रेम्यूनरेशन होता है, चार्जेस होते हैं बहुत सारे, तो वो थोड़ा ज्यादा रखना है। तो चार शेड्यूल हो गए। अरे नोट नंबर 1 कंपलसरी, नोट 1 क्या होगा? प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज, प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी। वो आएंगे तो लिखेंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हमारा क्या जाता है। और यहाँ नोट 2 नोट 3 है ना, वो जो भी आगे के कैलकुलेशंस हमको समझ में नहीं आएंगे वो लिखेंगे, सिंपल बात है, राइट? हो गया। तो आई होप कि ये सब आप साथ साथ में लिख रहे होंगे, राइट? तो ये तो अभी क्या है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो तो बाद में भरना है ना, टोटल आए तब। तो हमारा स्टार्टिंग तो यहाँ से होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, राइट? पहला है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 40,60,000। देखो इसमें रुपीज इन थाउजेंड, रुपीज इन लैक्स नहीं लिखा है, बहुत शांति है। अगर लिखा होता है ना तो थोड़ा ध्यान में लिखना होता है, क्योंकि 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 यहाँ थाउजेंड में या लाख में होता है, और एडजस्टमेंट जो देते हैं ना एडिशनल इंफॉर्मेशन में, वो पूरा लिखते हैं, 5 लाख रुपया, 5 लाख थाउजेंड नहीं लिखते, राइट? तो उस वक्त ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे का जो मैच हो ना, वो होना चाहिए, राइट? रिसर्च में ऐसे होता है, रिसर्च हम कराते हैं ना, पीएचडी और एमफिल कराते हैं, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लेके आते हैं सब, राइट? मैं देख लेता हूँ, कोई वेटिंग नहीं ना। हाँ, सब लेके आते हैं। तो क्या होता है कि एक कंपनी का जो अमाउंट होता है मिलियन में होता है, दूसरी कंपनी का करोड़ में होता है, और एलिकॉन जैसी कंपनी में थाउजेंड में होता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सब मिक्स करके आ जाते हैं, तो मिक्स नहीं करना है। तो आइदर यू कन्वर्ट लाख इनटू करोड़ और करोड़ इनटू लाख, लेकिन हर जो रहेगा वो करोड़ में या लाख में ही रहेगा, राइट? तो अक्रॉस अक्रॉस द कैलकुलेशन इट शुड बी द वन एंड सेम, राइट? लाख है तो लाख में होगा। तो ऐसा ना हो तो देख लेना पहला बस, राइट? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीट, चलो वन बाय वन में पेन चेंज करके हम लिखते हैं, राइट? तो पहला इंटरेस्ट एंड
डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, वो तो मेन इनकम है। तो मेन इनकम कहाँ आएगी? शेड्यूल नंबर 13 में इंटरेस्ट अर्न में आएगी। तो यहाँ शेड्यूल 13 में लिख दो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। हाँ, लेकिन हमने सर सी वाला कुछ किया था, मुझे पता नहीं क्या किया था। राइट, हाँ सी वाला था, क्या था? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एज ऑन 31 मार्च 2006। हम कब का बना रहे हैं? 2006 का। राइट, तो 31 मार्च 2006 वॉज 10,000। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन 31 मार्च 2007 वॉज 15,000। राइट, 31 मार्च 2006 का। और ये ओपनिंग रहेगा ना 31 मार्च 2000, ये 10,000 है, ये ओपनिंग रहेगा। यार ये ओपनिंग रहेगा, ये एक्चुअली फाइल लिख दो। और हाँ, नहीं नहीं, ये सही है, सही है, सही है, सही है, एकदम सही है। राइट, तो मैं बता दूं क्यों क्यों हम क्या क्या करने वाले हैं। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या है? लास्ट लास्ट में मैंने समझा दिया था कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऐसा होता है कि आपको 3 महीने का अगर डिस्काउंट मिला है और आपका ईयर खत्म होता है, तो जो नेक्स्ट ईयर का जो इन जो सॉरी, जो नेक्स्ट ईयर का जो डिस्काउंट अभी से मिल गया है या मिलने वाला है और कैलकुलेट कर दिया है, तो उसको माइनस करेंगे। मतलब कि नेक्स्ट ईयर का माइनस करेंगे, प्रीवियस ईयर का करेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे। कैसे, मैं समझा देता हूँ, 1 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ। राइट, यहां तक हो गया। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या आता है कि भाई हमारा, मान लो कि 6 मंथ का बिल है, मान लो कि 6 मंथ का बिल है, और जो डिस्काउंट है हमको 10,000 रुपीज मिलने वाला है। राइट, टोटल 6 महीने का 10,000। तो आज मान लो कि 1/1/2020 को हुआ, और ये 36/2020 को हमारा, मतलब ये पीरियड का है ना, 10,000 हमने बिल्स किसी के डिस्काउंट की थी, यहाँ यहाँ हमने ले लिया था। मतलब मान लो कि 1 लाख का था, 10% डिस्काउंट लगाया, 90,000 बिल्स के अगेंस्ट में दे दिया, ये 10,000 हमारा क्या हो गया? इनकम हो गई। लेकिन ये इनकम इस साल की पूरी नहीं है, ये 31/3/2020 को हम खत्म करेंगे ना। एनुअल एनुअल हम क्या करेंगे? ये अकाउंटिंग ईयर खत्म करेंगे, हम यहाँ एनुअल रिपोर्ट्स बनाएंगे और बैलेंस शीट और वो सब बनाएंगे ना। तो ये 3 मंथ्स यहाँ है, ये 3 मंथ्स यहाँ है, और ये 3 मंथ्स यहाँ है। मतलब 10,000 मिला है, तो 5,000 यहाँ का है, और 5,000 कहाँ का है? नेक्स्ट ईयर का है। तो ये 5,000, यहाँ तो हम 10,000 गिन देंगे कि भाई इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो पहली पर्टिकुलर हमारी जो एक्सट्रैक्ट में है, वो ये है अमाउंट, मान लो कि ये है। राइट, जो भी 40,60,000 है, इसकी जगह मान लो कि ये है। राइट, तो इसमें से 5,000 रुपया तो हमको एडवांस में मिल गया है, तो ये दिस इनकम इज नॉट बिलोंग्स टू दिस ईयर, दैट 5,000 इज बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। तो हम क्या करेंगे? तो 10,000 में से 5,000 जो है वो माइनस करेंगे। राइट, मतलब जो क्लोजिंग होगा वो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लोजिंग होगा मतलब नेक्स्ट ईयर का होगा, माइनस करेंगे। तो ये नेक्स्ट ईयर का माइनस करेंगे, मतलब 5,000 विल बी कंसिडर एज इनकम फॉर द ईयर 1920। 1920 का कितना होगा? 5,000। अभी सिनारियो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। मान लो कि नेक्स्ट ईयर यहाँ आ गया। राइट, नेक्स्ट ईयर यहाँ आ गया, और ये 5,000 है, तो वो तो लास्ट ईयर मिल गया था। राइट, ये 5,000 हमको तो लास्ट ईयर मिल गया था। लेट बिकॉज इट बिलोंग टू दिस, मान लो कि 15,000 इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट है, तो 5,000 तो लास्ट ईयर का था ना, यहाँ मिल गया था, तो माइनस किया था, वो हम क्या करेंगे? इस साल हम प्लस करेंगे, बिकॉज ये 5,000 लास्ट ईयर मिला था, वो हमारा इनकम कब है? 2021 की इनकम है। तो ये ओपनिंग क्या करेंगे? ओपनिंग प्लस करेंगे, क्लोजिंग माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग मतलब नेक्स्ट ईयर की हुई, ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर मिलनी, इस ईयर मिलनी थी, लेकिन लास्ट ईयर हमको मिल गई थी या मिलने वाली थी। राइट, और कैलकुलेट कर दी थी। तो इसलिए हम क्या करेंगे? ओपनिंग प्लस करेंगे, क्लोजिंग
माइनस करेंगे। चलो अभी आते हैं इस हमारे एग्जाम्पल में, राइट, ये एग्जाम्पल में आते हैं। तो हमारे केस में क्या हुआ, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव 40,60,000, राइट। इसमें से रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन 31 मार्च 2016, मतलब ओपनिंग है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन 31 मार्च 2007 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये कहाँ ये सब होगा, तो हमारा मेन इनकम कहाँ है, यहाँ है, राइट। तो यहाँ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 40,60,000 हमको लिखना है। लेकिन इसमें थोड़ी इनकम क्या है, नेक्स्ट ईयर की है, थोड़ी इनकम नेक्स्ट ईयर मिल गई थी तो हमको रिसीव यहाँ करना है। तो प्लस क्या करेंगे, ओपनिंग, ओपनिंग राइट डाउन, ओपनिंग रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, राइट। ओपनिंग बिल रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कितना है, 10,000, राइट। माइनस ही साथ में, मतलब प्लस प्लस नहीं करना है, मतलब टोटल बोटल नहीं करना है, माइनस क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, आरबीडी कितना है, 15,000। तो -15,000 तो ब्रैकेट में लिखेंगे। और टोटल बोलो, टोटल बोलो, 40,55,000। 40,55,000, राइट। तो समझ में आ गया है सबको। ये दूसरी इफेक्ट आपको हमको सोचनी नहीं है अभी। ये क्या होगा, जो हमारा जो इसमें से माइनस होगा, दूसरी इफेक्ट अभी सोचनी नहीं है। हमको क्या करना है, अभी तो प्रॉफिट एंड लॉस ही बनाना है। तो ये पहली इफेक्ट हो गई, मतलब ये जो है ये क्लियर हो गया, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, हमने ये ले लिया है, राइट। तो पहला हो गया, राइट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट कहाँ आएगा, वो तो हमारा एक्सपेंस है, सब लोग वो करते हैं, तो मेन एक्सपेंस है। तो शेड्यूल नंबर वो 15 में आएगा। तो यहां लिख दो, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, और कुछ है नहीं, राइट। 24,04,000, तो 24,04,000 इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, राइट। नेक्स्ट है इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 10 लाख। तो ये तो पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, राइट, ये तो कैपिटल है, तो ये तो आएगी नहीं। वैसे ही यहाँ हमने इनकम टैक्स प्रोविजन लिखा है या रिजर्व अंडर सेक्शन 17 है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, और वो इनकम टैक्स प्रोविजन ऑलरेडी लिख गया है, तो ये दोनों आएगा नहीं, क्योंकि ये बैलेंस शीट है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दिया है तो कहीं ना कहीं आएगा, तो फिट मत करना। इश्यूड कैपिटल चलो नहीं है तो रिजर्व में फिट कर दे, या इंटरेस्ट अर्न में फिक्स कर दे इश्यूड कैपिटल, ऐसा ऐसा फिट नहीं करना है, जो आता है वो ही लिखना है, राइट। नेक्स्ट है कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। तो कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज कहाँ आएगा, तो वो अदर इनकम है, वो मेन इनकम नहीं है। तो अदर इनकम कहाँ आएगी, शेड्यूल नंबर 14 में। तो शेड्यूल नंबर 14 निकालते हैं और यहाँ लिखते हैं कमीशन, लिखो कमीशन, ब्रोकरेज, ब्रोकेज मत बोलना, हाँ? पहले मैं बहुत ब्रोकेज बोलता था, राइट, एंड एक्सचेंज, राइट। एक्सचेंज मतलब डॉलर पाउंड का है, इंडियन रुपीज में, और इंडियन रुपीज का डॉलर पाउंड में 18,000 नहीं है, कितना है, 1,80,000 है, राइट। तो 1,80,000 अदर इनकम आ गई। रेंट रिसीव्ड, अरे वाह, रिसीव बोला है तो अदर इनकम ही होगा। रेंट अगर लिखा हो तो कंफ्यूजन होता है कि एक्सपेंस है या, तो रेंट रिसीव्ड यहां लिख देते हैं शेड्यूल 15 में, रेंट रिसीव्ड, राइट। कितना है, 60,000, वाह, 60,000 रेंट मिला है उसको। चलो कोई बात नहीं, हमको तो सिर्फ लिखना ही है ना। चलो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, आ गया, ओके। 60, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अरे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो वो भी अदर इनकम है, राइट। कहीं और मत रख देना, हाँ। तो प्रॉफिट ऑन, राइट डाउन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,90,000, राइट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये तो प्रॉफिट बोल दिया है, तो
सॉरी, यह कहाँ लिख रहा हूँ मैं? सर अदर इनकम में આવે ये हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में લખાઈ ગયું છે. हाँ, दोनों गलत लिख दिया मैंने, तो यहाँ लिख देता हूँ रेंट रिसीव्ड 60,000, देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,90,000, और ये मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। मेरे पास ये फैसिलिटी है तो मैं यूज कर सकता हूँ, तुम्हारे पास क्रॉसिंग के अलावा कुछ नहीं है, मतलब चैकड़ा। व्हाइटनर है सर, व्हाइटनर. वाइटनर, लेकिन वाइटनर है ना महंगा पड़ेगा, ज्यादा महंगा। राइट, ओके, तो हो गया यहाँ तक। यस सर, यहाँ तक हो गया, प्रॉफिट है। अभी क्या है, सैलरीज है। अरे वाह, सैलरीज देखो, अभी सैलरीज है तो जो साथ में है ना शेड्यूल नंबर जो 16 है, वो इसमें बहुत सारी डिटेल आ गई। तो सैलरीज एंड अलाउंसेस है, डायरेक्टर्स फीस है, रेंट एंड टैक्सेस पेड है। तो ये टैक्सेस लोकल टैक्स है, मतलब वो इनकम टैक्स वाला नहीं है। राइट, वो बड़ा टैक्स नहीं है, ये तो म्यूनिसिपालिटी का टैक्स है, वाटर टैक्स है, वो टैक्स है, वो तो सिंपल जाएगा। राइट, वो स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग है, पोस्टेज है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ऑडिट फीस है, एंड डेप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टीज है। ये सब कहाँ जाएगा? शेड्यूल नंबर 16 में जाएगा, अदर कॉर्पोरेट एक्सपेंस. अदर एक्सपेंसेस में लिख दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, क्योंकि बैंक चलाने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए। राइट, तो साथ साथ में मेरे साथ साथ लिखते रहिए। फर्स्ट, सैलरीज, सैलरीज एंड अलाउंसेस। ये सैलरीज एंड अलाउंसेस हमने बहुत सारा गिना ना इनकम टैक्स में, सेम सेम 5 और 6, सैलरीज एंड अलाउंसेस। राइट, देन क्या है, डायरेक्टर्स फीस है। चलो मेरे पास है तो मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि ये ऊपर नीचे मेरे पास है, तो मैं यहां से लिख लेता हूँ। डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर्स फीस एंड अलाउंसेस 24,000। अगर अमाउंट चेंज हो तो बोल देना। रेंट एंड टैक्स पेड, रेंट एंड टैक्स पेड, राइट, 1,08,000। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 48,000। चेक वेक प्रिंट करवानी होती है ना, इसलिए ज्यादा होता है, टेंशन मत लेना। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 3,000, राइट। देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ ही लिखेंगे, 10,000। ऑडिट फीस 8,000। बेचारे सीए को तो कुछ मिलता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हमको तो लिखना है। डेप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टीज 25,000, राइट, और कुछ है नहीं। राइट, आई होप के यहाँ तक आपने सब लिख दिया होगा, और मुझे वेट कर रहा है। हाँ, आ गया। डेप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टीज यहाँ तक हो गया, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट था वो ने देख लिया। अब फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन देखनी है। राइट, तो यहाँ तक सबने लिख लिया होगा, मैं एजम्पशंस कर रहा हूँ। राइट, और आगे बढ़ते हैं। A customer to whom a sum of ₹5 lakh has been advanced has become insolvent. 5 लाख जिसको दिया वो खत्म हो गया बेचारा। Is expected only 40% can be recovered from his assets. 40% recovered है तो 60% bad debts है, और bad debts होता है तो हमारी प्रोविजन में आना चाहिए कि भाई इतना नहीं मिलने वाला है। तो नोट नंबर 1 तो कंपलसरी हमने क्या लिखा है, प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज में। राइट, तो नोट नंबर 2 आगे लिखते हैं। नोट नंबर 2 क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन in case of
bad debts, right? So write it down. 5 lakh into 60%. It comes to 3 lakh, right? Will be written off, will be written in provision and contingencies. Write down further. %15 interest, लिखा है ना, 15% interest is not received, is not to be considered because it is considered based on cash basis. हमने एग्जाम्पल गिने थे, इफ यू रिमेम्बर, कि भाई जो बैड एसेट्स होती है और जो एनपीए होता है, उस पे अगर हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो लिखेंगे, राइट? लेकिन जो रिसीव्ड नहीं है वो जाने देंगे, राइट? तो वैसे शॉर्ट शॉर्ट एग्जांपल्स हमने देखे हैं। तो ये कैश बेसिस पे आएगा, ये 15% इंटरेस्ट इज नॉट रिसीव्ड विल नॉट बी कंसिडर, क्योंकि हमको मिला नहीं है और हमको गिनने की जरूरत भी नहीं है, तो उसका जो है वो नहीं आएगा। तो 3 लाख इज ए प्रोविजन, और प्रोविजन नोट नंबर 1 में आएगा। यहां लिखा है ना प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज, तो यहां लिख दो कितना कितना है, बैड डेट्स है ना, बैड डेट्स, बैड डेट्स कितना आया, 3 लाख, बैड डेट्स 3 लाख। तो ये हमने कैलकुलेशन से किया, क्योंकि 3 लाख का एडवांस दिया था, 60% नहीं आएगा। एग्जाम में ऐसा भी कर सकते हैं कि 60% आर रिकवरेबल और 60% आर बैड डेट्स, तो हमको बोलना है कि 60% लिखना है, राइट? यहाँ लिखा है कि 40% इज रिकवरेबल, ऐसा लिख सकते हैं कि 40% इज नॉट रिकवरेबल, तो 40% 5 लाख का करना है, वो तो आप समझदार है, राइट? तो ये हो गया, चलो ये कंप्लीट यहाँ का नोट्स हो गया, और ये कैश बेसिस पे आएगा तो हम लिख नहीं रहे हैं, राइट? नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स ऑन अदर एसेट इज नेसेसरी 1 लाख, वो भी कहाँ आएगा, प्रोविजन। यहाँ तो सिंपल बोल दिया है कि प्रोविजन 1 लाख इज रिक्वायर्ड, तो राइट डाउन प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, राइट, 1 लाख। एक ही इफेक्ट आएगी, राइट? हम बैलेंस शीट वाला देखेंगे तो 2 इफेक्ट सोच लेंगे, यहाँ तो एक एक इफेक्ट आएगी, यहाँ से निकल गए। रिबेट ऑन बिल टैक्स काउंटेड ऑलरेडी देख लिया है। प्रोवाइड 7 लाख फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कहाँ लिखेंगे, अप्रोप्रिएशन में लिखेंगे या प्रोविजन में लिखेंगे? तो ध्यान में रखना है, इनकम टैक्स प्रोविजन हम कहाँ लिखेंगे, हम प्रोविजन में लिखेंगे। तो यहाँ है इनकम टैक्स, और लास्ट टाइम हम आपको पता है ना कि प्रोविजन कैसे गिनते हैं, तो जो वो प्लस माइनस करने के बाद हम क्या करते थे, शेड्यूल 13, 14, इसमें से शेड्यूल 14, 15 माइनस करके और अदर प्रोविजन माइनस करके जो हम नेट प्रॉफिट करते थे उस पे हम अप्लाई करते थे, राइट? उस पे हम अप्लाई करते थे। तो वो पता है, इसलिए आपको ये प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज में आएगा, ये प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज में आएगा। तो यहाँ लिख दो, क्या लिखना है यहाँ, यहाँ क्या लिखना है, क्या था, 1 मिनट में भी, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। यस, इनकम टैक्स 1 लाख, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स लिख दो, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। 2 बार किसी का फोन आया ना, इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। 7 लाख, 7 लाख लिख दिया।
सर लिख दिया, अभी आगे क्या बताओ जल्दी जल्दी। ओके, द डायरेक्टर्स इज डिजायर टू डिक्लेयर 10% डिविडेंड। वाह, 10% डिविडेंड। 10% डिविडेंड। अभी एक किसी आदमी का फोन आता है, आता है, आता है। ओके, 10% डिविडेंड, तो 10% डिविडेंड, हाँ अभी ये काम लगेगा। ये 10 लाख का 10% है ना, तो ये कहाँ आएगा? ये कहाँ आएगा? एप्रोप्रिएशन में आएगा। राइट, ये एप्रोप्रिएशन में डिविडेंड वाला लिखेंगे। इस पे पहले हम लिख देंगे, एप्रोप्रिएशन में लिख दे स्टैट्यूटरी फंड्स और स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व 25% इफ रिक्वायर्ड, और यहां लिख दे प्रपोज्ड डिविडेंड। तो 10 लाख है ना, 10 लाख इंटू इंटू 10%, कितना हुआ? 10% कितना हुआ? 1 लाख सर, इतना नहीं आता है। 1 लाख हो गया। चलो, प्रपोज डिविडेंड भी हो गया। राइट, प्रपोज डिविडेंड भी हो गया। राइट, तो सब हो गया अभी तो। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तो हम क्या करेंगे? टोटल टोटल खेलेंगे ना। चलो, ये हो गया, तो ये डबल अंडरलाइन कर देनी है मेरे भाइयों। राइट, टोटल बाद में नहीं करना है, ऐसा राउंड करते चलेगा। राइट, चलो यहाँ का टोटल करो, कितना आता है? 4,30,000। 4,30,000 बोला है तो लिख देते हैं। ये भी हो गया है ना, कुछ है नहीं, तो यही यही हमारा फाइनल टोटल। तो दूसरी बार टोटल नहीं करना क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है भैया। ये भी टोटल करो, 2,10,000। 4,73,000। वेरी गुड, 4,73,000। और ये कंटिजेंसी से इनकम टैक्स आ गया है, इसलिए हम लिख सकते हैं कितना है? 11 लाख। राइट, 11 लाख। 7 ने 3 10 ने का 11 लाख। ओके, 11 लाख। चलो अभी टोटल टोटल ऊपर ऊपर लिखते हैं ना। चलो ऊपर ऊपर करते हैं। तो यहां लिखते हैं 40,55,000, शेड्यूल नंबर 13। 14 में 4,30,000 टोटल। $44,85। ओके, चलो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का तो टोटल मेरे पास है 2,40,416 का 40 आ गया 47,300, एंड प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज का 11 लाख हमने लिखा है। राइट, तो ये 11 लाख, 11 लाख टोटल कर देते हैं। चलो इसका भी टोटल टोटल 39,77,000। 39,77,000। 39,77,000। तो नेट प्रॉफिट आ गया। हाँ प्रॉफिट है, चलो लॉस नहीं है। 5,08,000। 5,08,000। 5,08,000, वेरी गुड। अभी 5,08,000 आया तो स्टैच्यूटरी रिजर्व तो करेंगे हम 5,08,000 इंटू 25%। इट कम्स टू 1,27,000। 1,27,000। 1,27,000 और कुछ है नहीं। राइट, तो यहां लिख देते हैं 2,27,000, और यहाँ यहाँ भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। एक्चुअली डायरेक्ट लिखना बहुत अच्छा रहेगा। राइट, डायरेक्ट यहाँ लिख दो, ये रहने दो, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो। राइट, यही हैबिट रखेंगे हम। ये जाने देते हैं
ये दोनों टोटल 1,27,000 एंड 1 लाख, राइट। यहां मैं निकाल देता हूं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये टोटल है ना 5,08,000 में यहां लिख दूंगा, और बाकी का जो बैलेंस रहेगा तो बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। कितना आता है इसमें से? 2,81,000 2,81,000 2,81,000 is correct answer, right? 2,81,000 is correct answer. आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल वे से हमने ट्राई किया है कि सॉल्व करें। ये सिंपल एग्जांपल था। सिंपल मतलब कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं था। तो अभी हम क्या करेंगे, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट भी कॉल हो सकते हैं, और इसमें एक्चुअली क्या है कि इलेक्शंस की ड्यूटी है, राइट। तो शायद उनका भी कॉल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 5 वी आर मीटिंग, राइट। तो ये ऑन रख सकते हो, ऑफ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो आफ्टर 5 मिनट्स वी आर मीटिंग अगेन।